Hello everyone. I welcome you all to your YouTube channel, The Knowledge Tracer, or in short, the KT. My name is Neha Mishra, and I hope that you all are following us on this platform as well as on our Telegram channel. Guys, as I always remind you all that we all are organizing a lot many quizzes over there. So I would request you all to subscribe to our channel. The Telegram channel as well for the regular updates, for the quizzes. The most important thing is our quizzes. And if I talk about YouTube, for the videos and the enormous knowledge that the eminent faculties are sharing with you all. So, guys, kindly subscribe our channel, share the videos, and like if you really like the sessions. As you can see on your screen that today we are going to discuss part 8 or session 8 of this error correction series that is going on. The name of the series is 100 top expected error questions for IBPS PO and clerk exam with logical explanation. सो पता है आपको कि मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एरर है तो कहाँ पे है और क्यों है ये भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको कितना समझ में आता है वो तो आपके फीडबैक से पता चलता है और फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है हम सभी को, हमारी पूरी टीम को। सो गाइज इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सपोर्ट ही है जो मैटर करता है। ओके सो गाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये भी मुझे कहते हुए थोड़ा आई फील सैड कि काफ़ी दिनों से हमारे कोई वीडियोस नहीं आए हैं, कोई सेशंस नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हम लोग वीडियोस नहीं दे पाए। सो गाइज काइंडली पार्डन अस फॉर दैट एंड फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा ये मैं उम्मीद करती हूँ। So guys, let's start our session for today. We are going to discuss session 8. We have already covered 7 sessions, 7 very important sessions. That means overall 70 questions have been discussed. So guys, do watch those videos also. And mathematics, reasoning, GA की भी काफ़ी classes हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देखिए और भी classes regular basis पे आने वाली हैं. So guys, let's start our session for today. And the first question we are going to discuss here is, with no government control and least regard for the environment, the private waste processing industry poses a threat to public safety in India. No error. Okay. So एक के बाद एक पढ़ते चलते हैं. With no government let me select the ink first and then. So with no government control and least regard for the environment, the private waste processing industry poses a threat to public safety in India. So जो वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसकी बात की जा रही है कि ये कोई भी अगर कंट्रोल मेजर्स ना अपनाए तो ये काफ़ी हैजार्डस साबित हो सकते हैं, ये थ्रेट हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए इंडिया में। ओके सो in part 1 with no government control, I think in my opinion there is no error in this section in part 1 and least regard for the environment. So guys आगे बढ़ने से पहले यहीं पे देख लेते हैं लीस्ट रिगार्ड। ओके सो आप देख पा रहे हैं कि द वर्ड लीस्ट, ओके LEAST, ओके इट इज द सुपरलेटिव डिग्री, राइट? पार्डन मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। ओके मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है तो उसके लिए गाइज काइंडली पार्डन मी, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट इन दिस। सो least is the superlative degree and we all know, and if we don't know we should know. I'm telling you किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले इंग्लिश का एक बेसिक रूल कहता है कि एक डेफिनेट आर्टिकल आता है एंड दैट इज द। हमें पता है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द है, और दो आर्टिकल्स जो हैं वो ए एन हैं, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स या डिटर्मिनस हैं। डिटर्मिनस चैप्टर में मैंने आपको ये कराया था, आप वो देख सकते हो, वो वीडियो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में इंग्लिश की। ओके सो a superlative degree is always followed by a definite article and that is the. So the error is in second part of this particular question, and that is we have to put the definite article the before the word least. Okay so I hope I made myself clear in this particular question. There is no doubt and the question was easier comparing with other questions. Easy है ये question
कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। स्टिल ऐसे क्वेश्चंस इतने इजी, मतलब देखने में तो आप आईबीपीएस समझो कि आईबीपीएस की मेंस एग्जाम्स या क्लरिकल एग्जाम में बैठे हो, और कभी कभी हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ आने वाला है, बट ऑल ऑफ अ सडन questions like this appear on your screen and you think that you search for a tougher error। ठीक है, आप सर्च करते हो कि कहाँ एरर हो सकता है, बट वही बात होती है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एरर था, आर्टिकल का एरर था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इट इज रिलेटेड टू आईपीएल, जो कि अभी चल रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स आईपीएल बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है कि क्रिकेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ध्यान मन लगता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैं खुद भी देखती हूँ, बट आई डोंट वॉच आईपीएल। सो लेट अस proceed. If the IPL has succeeded in drawing an audience across the country, it is because cricket has always had a strong foundation and a dedicated audience. No error. ओके, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एरर जो आ सकता था या आ सकता है वो ऑडियंस से रिलेटेड एरर आ सकता है, क्योंकि ऑडियंस को हम लोग सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं। जब एक साथ होगा, यूनानिमस होगा, तो सिंगुलर, और डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड इन ओपिनियन, डिवाइडेड इन सपोर्ट, सो उस टाइम पे प्लूरल होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन से ऐसे जहां पे ये सारे वर्ड्स पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं, वहां पे ऑडियंस हुआ या ज्यूरी हुआ या क्लास हुआ, टीम हुआ, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनसे बेसिकली जो एरर्स आते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल से ही आते हैं। सो दैट इज व्हाई माय फोकस वाज on this word audience. Okay, if the IPL has succeeded in drawing, there is no error in this part, an audience across the country, it is because, okay, so an audience लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि an अगर audience यूज किया हुआ है, unanimous लिया हुआ है, तो हमारा जो verb है इसको follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Okay, it is because cricket has always had a strong foundation and a dedicated audience. So यहाँ पे भी डेडिकेटेड ऑडियंस। सो पूरे सेंटेंस के अंदर ऑडियंस को सिंगुलर की तरह लिया गया है, कहीं पे भी वर्ब से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन इज अ नो एरर क्वेश्चन, देयर इज नो एरर, सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी पार्ट 5 एंड दैट इज नो एरर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दैट आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. The question was a good one. Moving on to the next one, and that is, a new study found that while weight loss via surgery may improve knee pain in obese patients, there may be permanent damage to the knee from being severe overweight. Okay, a new word is there and that is obese. Okay, so obese का मतलब होता है fat. Okay, काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट होना, काफी ज्यादा fat होना, okay, मोटा होना। So a new study found that while weight loss, एक स्टडी से पता चला है, एक नई स्टडी से पता चला है कि सर्जरी से जो फैट पेशेंट्स होते हैं, ओबीस पेशेंट्स होते हैं, अगर उनकी नी सर्जरी करी जाए तो नी पेन इम्प्रूव हो सकता है, मतलब दर्द कम हो सकता है, बट ओवरवेट की वजह से, वजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनके नीज को परमानेंट डैमेज हो सकता है, पूरी तरह से वो खराब हो सकते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि जो ओबीस पेशेंट्स हैं उनकी नी सर्जरी नहीं की जाए। ओके, ये न्यू स्टडी में पाया गया। ओके, so the error here is in part 1, and why is the error in part 1? So I'll make you understand. So guys, देखिए, a new study found that this sentence is in, according to this sentence, we are talking about past indefinite or simple past tense, right? Simple past, right? अब simple past tense हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई इवेंट पास्ट में हो चुकी है, उसका कोई रिलेशन अभी प्रेजेंट से नहीं है, वो पास्ट में हो चुकी है एंड दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है। आई केम, आई वेंट, आई एट, आई टॉट, ये सारी चीजें इफ आई से इन पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, it means that I've already completed all these works. Okay, so there is no connection with this, there is no connection of this event with the present time. Okay, present time से कोई connection नहीं है। So
बट इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि एक न्यू स्टडी में पाया गया है, क्या पाया गया है, स्टडी तो हो चुकी है बट जो पाया गया है वो ये पाया गया है कि जो पेशेंट्स हैं, अगर उनका जो ओबीस पेशेंट्स हैं, अगर उनका नी सर्जरी किया जाए तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। ये जो इवेंट है दूसरा वाला, जो स्टडी का आउटकम है दैट इज इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वो अभी भी है, उसका जो इफेक्ट है वो अभी चल रहा है, ठीक है, मगर सिंपल पास्ट टेंस में ये नहीं होता है, दैट हैज ऑलरेडी एंडेड, वो खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे जो भी इफेक्ट है वो खत्म नहीं हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस वी हैव टू add the verb here and that is has. A new study has found में क्यों इसको बनाना पड़ेगा आपको present perfect tense, right? present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही होता है कि कोई एक इवेंट हो चुका है जिसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, सो द एरर वाज इन पार्ट 1 एंड दैट इज वी हैव टू ऐड अ वर्ब हियर एंड दैट इज हैज बिफोर द वर्ड found. I hope I made myself clear in this question also. Moving on to the next question, and that is question number 4. The question on your screen is, with a view to avoid another caste conflict, the administration has deployed additional police force on the village, while the administration as well as the police officials are monitoring the situation. No error. I would request you all kindly pause the video and read the question by yourself. आप खुद से इस क्वेश्चन को पढ़ो। आई कैन अश्योर यू कि आपको एरर सामने से मिल जाएगा। मैं हर सेशन में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे डालती हूँ जिनमें कि एरर्स जो हैं आपको चुभते हैं, आपकी आंखों में चुभते हैं। ओके, सो द एरर कॉल्स यू कि आओ और मुझे ढूंढ लो। ओके, हाइड एंड सीक चल रहे हैं यहाँ पे एरर्स का और आपका। सो वीडियो को पॉज करिए, देखिए कि एरर कहाँ पे है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लेट मी रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, दैट इज गोइंग टू बी beneficial for you all. With a view to avoid another caste conflict, the administration has deployed additional police force on the village, while the administration as well as the police officials are monitoring the situation. Okay, caste conflict ना हो इसके लिए administration ने extra additional police force को deploy किया है किसी एक particular जगह पे, और जो अदर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो सिचुएशन को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी आपने एरर निकाल लिया है, एंड दैट इज इन थर्ड पार्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑन वी शुड यूज द प्रेपोजिशन इन। विलेज में डिप्लॉय किया गया, विलेज के ऊपर नहीं। ओके, सो प्रेपोजिशन की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है और नहीं है तो आप सेंस से बता सकते हैं। ओके, सो वी हैव टू राइट इन द प्लेस ऑफ ऑन। ओके, सो इट वाज अ preposition based error question. The error was in part 3 and it was again an easy question. Moving on to the next question, question number 5, and that is, the actor who plays a detective in the film alleged to have pushed the director when he asked him to get into his costume as it was getting late. Okay, no error. किसी एक एक्टर की बात की जा रही है जिनका फिल्म के अंदर एक डिटेक्टिव का रोल है, वो डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने डायरेक्टर को, जो मूवी का या फिल्म का डायरेक्टर था, उनको धक्का दे दिया। When he asked him, जब डायरेक्टर ने उनको कहा कि आप अपना कॉस्ट्यूम पहन लीजिए क्योंकि लेट हो रहा है, देरी हो रही है, देर हो रहा है, जो भी आप कहना चाहें अपने लैंग्वेज में। ओके, सो दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। ओके, द एक्टर हु प्लेज, हम एक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, एक्टर की बात कर रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, alleged to have pushed. ओके, अब अगर हम बोल रहे हैं हिंदी में, अभी मैंने समझाया, या इस क्वेश्चन का जो भी सेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्टर ने डायरेक्टर को धक्का दिया, राइट? ओके, सो द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। ओके, जो डूअर है वो रेसिपिएंट है एक्शन का। ओके, रिसीव कर रहा है। ओके, सो जब सेंटेंस हमारा होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है, तो
उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? द एक्टर हु प्लेज अ डिटेक्टिव इन द फिल्म इज अलीज्ड। ठीक है, एक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया गया है। ठीक है, एक्टर ने किसी के ऊपर नहीं लगाया। अगर ये सेंस होता कि एक्टर ने इल्जाम लगाया है तब ये सही होता कि द एक्टर हु प्लेज द डिटेक्टिव इन द फिल्म अलीज्ड, जो भी आगे सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट होता। बट उसका मतलब ये निकलता कि एक्टर ने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है, ना कि एक्टर इज द रेसिपिएंट ऑफ दैट हैपनिंग, ओके, दैट पर्टिकुलर हैपनिंग। सो जब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस है, तो हमारा एरर है सेकंड पार्ट में, और वो है कि अलीज्ड के पहले हमारा इज होना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल गाइज। सॉरी, मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको बहुत आवाज, एडिशनल आवाज सुनने को मिल रही है। सो बस इतना ही कहूँगी कि काइंडली इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। बाहर से काफ़ी आवाज़ आती है, सो इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते। मैं पूरी कोशिश करती हूँ चारों तरफ से कि आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। स्टिल कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. He further said there is no purpose in waiting for the final approval since both felling of trees, commencement of work would have already taken place based on in principle approval, no error. Okay, he further said, उसने कहा, उसने आगे कहा. Okay, further said. Okay, said, you can see here past. Okay, there is no purpose. Okay, उसने कहा कि कोई मतलब नहीं बनता है फाइनल अप्रूवल के लिए वेट करने के लिए, क्योंकि जो पेड़ों का काटना है वो स्टार्ट हो चुका है, काम भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस। ओके, सेंटेंस हमारा पास में चल रहा है एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, उसने जो भी कहा उसकी बात को डायरेक्टली उसी तरह नहीं रखी गई है, हूबहू उसी तरह नहीं रखी गई है, उसको अपने शब्दों में अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर लिया गया है, फिर कहा गया है। सो द स्पीच इज indirect speech. Okay, there is a rule related to indirect speech that if the reported verb, okay, the reporting verb is in past tense, the reported speech should also be in past tense, right? But when the sentence gets started, he further said there is no purpose, ये चल रहा है हमारा present में, which is a wrong sentence. Okay, according to the rule of the speech, if the reporting verb is in past tense, the reported speech should also be in past tense. Okay, so instead of using the helping verb, let me erase it first and then right, if the helping verb is in present tense, we should change it. We should write was here. Okay, it should be in past tense according to the rule of the speech of narration. Okay, there was no purpose. Okay, so ऐसे errors मैं आपको already previous sessions में, previous videos में करा चुकी हूँ। ऐसे errors बहुत सारे मिलेंगे guys। हमेशा बोलती हूँ मैं, जब भी क्वेश्चन आपको देखना है सबसे पहले आपको टेंस को फॉलो करना है। टेंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वॉइस एंड देन नरेशन। मेनली आपको एरर करेक्शन यहीं से आते हैं। ओके, बहुत कम एरर क्वेश्चंस दूसरी जगह से या डायरेक्ट रूल से उठा के देता है। डायरेक्ट रूल से हम क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स तो हमें याद हो चुके हैं। ओके, इधर और, निदर नॉर, ये सारे रूल्स हमें याद हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, बट ये ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Sporting bodies such as FIFA should be run transparently, and rigorous standards should be maintained to ensure that sports are played in the right spirit, no error. Okay, चलिए, फीफा की बात की गई है। फीफा आपको भी पता है, फुटबॉल के बहुत सारे फैंस हैं हमारे इंडिया में भी। कहा जा रहा है कि जो स्पोर्टिंग बॉडी हैं फीफा की तरह, उनको ट्रांसपेरेंटली वर्क करना चाहिए। ठीक है, और हर चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए कि सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं कि नहीं,
स्पोर्ट्समैनशिप वहां पे दिखाया जा रहा है कि नहीं, सभी चीजें एक फेयर तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ द क्वेश्चन. ओके, दिस वॉज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, इट वॉज द थीम. ओके, चलिए. ओके, इफ आई से मूवी like PK. PK is an interesting movie. Are very interesting. Okay, movie like PK are very interesting. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है दैट इज आर प्लूरल, बट मूवी जो है वो दैट इज सिंगुलर. ओके, सो या तो ये यहाँ पे इज होना चाहिए, ये यहाँ पे ये मूवीज होना चाहिए. अब क्या है एरर हमारा, क्या है? इज कर दूं तो मूवी रहने दूं, मूवीज कर दूं तो आर सही है. ओके, आप वीडियो को पॉज करिए, आप बताइए आपके हिसाब से एरर क्या होना चाहिए. मेरे हिसाब से इस सेंटेंस के अंदर एरर होना चाहिए कि मूवीज लाइक पीके. ओके, देयर इज नॉट अ सिंगल मूवी इन द यूनिवर्स. एक ही मूवी नहीं है, बहुत सारी मूवीज हैं. ओके, सो मूवीज लाइक पीके, बहुत सारी मूवीज हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लास. ओके, इन द सेम वे ये एग्जाम्पल लिखने का मतलब यही था कि ये एग्जाम्पल रिलेटेड है हमारे इस क्वेश्चन से. ओके, पहले ही पार्ट में देख रहे हैं हम स्पोर्टिंग बॉडी सच एज फीफा. अगर यहाँ पे मूवीज लाइक ना कहें, मूवी सच एज अगर मैं लिख दूं तो भी वही बात होगी, क्योंकि मूवीज सच एज. सो फीफा एक स्पोर्टिंग बॉडी है, बट इट इज नॉट द ओनली स्पोर्टिंग बॉडी इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड. देयर आर मेनी स्पोर्टिंग बॉडीज. ओके, बहुत सारी स्पोर्टिंग बॉडीज हैं. सो आवर एरर इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग बॉडी वी शुड राइट bodies, sporting bodies such as FIFA. So I hope आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे एरर नहीं है आगे के पार्ट्स में. So the error was in section 1 and that is sporting bodies. Okay, moving on to the next question, and question number 8. According to a consultant, big dams and hydropower offer great potential and can provide about 16% of Africa's power by 2040 compared to solar power which will provide only about 10%. No error. Okay, according to a consultant, big dams and किसी एक कंसल्टेंट ने बताया या उनके हिसाब से उनके अनुसार जो बड़े बड़े डैम्स हैं एंड हाइड्रो पावर ऑफ अ ग्रेट पोटेंशियल एंड कैन प्रोवाइड. ओके, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आगे बढ़ रहा है. ओके, हाइड्रो पावर ऑफ अ ग्रेट पोटेंशियल. ओके, जो हाइड्रो पावर है, बिग डैम्स और हाइड्रो पावर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल देते हैं एंड कैन प्रोवाइड और प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, अबाउट 16% ऑफ अफ्रीकाज पावर बाय 2040. अफ्रीका में जितना भी पावर जनरेट होता है उसका लगभग 16% वो प्रोवाइड कर सकते हैं 2040 आते आते, कंपेयर टू सोलर पावर विच विल प्रोवाइड ओनली अबाउट 10%. इसका कंपैरिजन किया जा रहा है सोलर पावर से जो कि सिर्फ 10% ही पावर प्रोवाइड करता है. ओके, सो द होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. ओके, वॉइस का भी कोई यहाँ पे रूल है ही नहीं, नरेशन है ही नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है, काफी बड़ा सेंटेंस है, इसलिए जरूर आपके दिमाग में क्लिक कर सकता है फॉर अ सेकेंड दैट देयर मस्ट बी एन एरर, बट it was a no error sentence. It is a no error sentence. So our answer is going to be no error part 5. It is a very simple question I can say. Okay, देखने में बड़ा है इसलिए कंफ्यूज आपको जरूर कर सकता है, but it's a simple question. Moving on to the next one, and that is many of the services which were once delivered on branches such as international transfers of personal loans are now being offered by new generation financial technology firms. No error. Okay, many of the services which were one. Okay, यहाँ पे एरर ऐसा दे सकता था कि many of the service लिख देता यहाँ पे, ठीक है, बट इतना भी इजी नहीं देगा. प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें कुछ ऐसा ही था, मिलता जुलता, मूवीज सच एज. ओके, सो मेनी ऑफ द सर्विसेज विच वेयर वंस, पास्ट टेंस, वेयर मिल गया हमें, पास्ट टेंस हो गया. अब हमें देखना है कि पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है. डिलीवर्ड ऑन ब्रांचेस सच एज. ओके, कुछ एक ब्रांचेस हैं जिनके द्वारा डिलीवर किए जाते हैं थे.
इंटरनेशनल ट्रांसफर्स और पर्सनल लोन। सो ये दो ब्रांचेस के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स और पर्सनल लोन्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड बाय, अब जो है एक नए फॉर्म के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं, उसका नाम है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स। ओके, जब मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रही थी और हिंदी में आपको समझा रही थी, तभी मैंने कहा कि बहुत सारी सर्विसेज जो डिलीवर की जा रही हैं वो बहुत सारे ब्रांचेस के द्वारा की जा रही हैं। ओके, जब भी हम लोग बोलते हैं के द्वारा, वी यूज द प्रेपोजिशन बाय। ओके ओके, बट in this particular question it has been written on, delivered on branches, उन पर किया गया, जो कि grammatically incorrect है। So the error is in part 2 and that is a preposition based error, and that is we have to use the preposition by instead of on. Okay, so this question was also an interesting one, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कब निकल जाता है, स्लिप कर जाता है, ये हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर वहीं पे हमारा एक नंबर चला जाता है। ओके, सही तो जाता ही है, नेगेटिव भी हम लोग ले लेते हैं, इकट्ठा करके चले आते हैं खुशी खुशी और लगता है कि हम तो सब सही करके आए थे। सो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज अंडर द डॉड-फ्रैंक एक्ट, a law aimed mainly at tightening the regulation of companies, firms in the United States had to be able to show how the minerals used in the products are from. Okay, no error. आपको सबसे पहले आई कैन अश्योर कि 80% स्टूडेंट्स जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगेगा कि मिनरल्स को फॉर्म करने की बात की जा रही है, बनाने की बात की जा रही है और स्पेलिंग का एरर है, FROM नहीं होके FORM होना चाहिए, बट नहीं, आप हैं गलत। यहाँ पे FROM नहीं होके FORM नहीं होके FROM ही होगा। अब हम लोग सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। अंडर द डॉड-फ्रैंक एक्ट, अ लॉ एम्ड, एक डॉड-फ्रैंक एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जिसमें ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या है ये, मेनली एट टाइटनिंग द रेगुलेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज से रिलेटेड जो रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, उन पे स्टिक करने के लिए ये लॉ है। फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैड टू बी एबल टू शो, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फर्म्स होती हैं, ओके, उनमें उनको ये दिखाना होता है कि हाउ द मिनरल्स यूज्ड इन प्रोडक्ट्स, उनके जो भी मिनरल्स उनके प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, फ्रॉम्स ठीक है, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये नहीं लिखना है। ओके, हाउ द मिनरल्स यूज्ड इन प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम। ओके, where the minerals used in their products are from, उनके प्रोडक्ट्स में जो भी मिनरल्स यूज किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये डॉड-फ्रैंक एक्ट जो है, यही इस एक्ट के तहत यही सारी चीजें मेंटेन करनी होती हैं। ओके, आपको दिखाना होता है कि क्या है। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, आपका आंसर सही होने वाला है कि पार्ट 4 में ही एरर है, लक बाई चांस ये बहुत अच्छी चीज मिल गई, बट अगर हाउ के बाद एरर लगा देता ना, तब आप गलती कर बैठते। ओके, सो ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बार बार इन द सेंस कि आधा घंटा तक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है, अगर ना आए तो आगे भी बढ़ना है, बट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, सेंस को फील करना है, क्वेश्चन के सेंस को फील करना है। क्वेश्चन का सेंस ही हमें आधा आंसर दे देता है। ओके, एक बार आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो प्रैक्टिस इज ऑल्सो, इनफैक्ट ऑल्सो वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, प्रैक्टिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड you all know better than I know. Okay, so guys, this was the end of the video, end of the session. This was question number 10, and we usually covered only 10 questions in each session. आज 8th सेशन था, इसके बाद और 2 सेशंस आने वाले हैं। इसके बाद मेरी जीएस की 2 क्लासेस आने वाली हैं इस वीक में, रीजनिंग की भी क्लास आने वाली है, मैथ्स की भी क्लास आने वाली है। आप काइंडली हमारे चैनल से बने रहें, और वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब और टू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, एंड share the videos, like if you really like the sessions, and thank you guys, bye bye. We'll meet soon in the next session. Tata, stay so safe and stay at home. Thank you.